Hello everyone. As promised few days back, we are here with some very useful tips and learning given by our guest speaker. Before starting, let me introduce myself first. I am Dr. Ravi, and I am a homeopathic physician and consultant. And along with homeopathic physician, I am an NLP practitioner, life coach, and hypnotist. After that, just I will take one more moment to introduce about mission of Mind Empower. Mind Empower was found with the mission to help at least 1 million students and professionals to reach their goals of self-development with mindset change, simple techniques, and imparting useful information to use in their specific area of work. Without wasting too much time, let me introduce our guest speaker, Dr. S.K. Mishra, who is Associate Professor in NHMC Government NHMC Government of Delhi. He has part to various seminars imparting valuable knowledge in homeopathic field on various subjects. And he is expert member in committee formed by Board of Homeopathic System of Medicine. And he has been subject expert in public service commissions of state and center. And apart from that, he has been invited to various channels as a COVID expert, like Delhi Up to Date channel and Lok Sabha channels to speak on the subject of COVID-19. Welcome, Dr. Mishra. Thank you, dear. How are you, sir? And, I'm fine, Ravi. How are you? Doing well? Yeah, I'm also fine. Very Yeah, good. yes. It's very. And I hope our audience are also doing well with their family. Yeah. It's very great to see you after so long. But we are interacting on phone regularly. So your last time was being so hard, so that we cannot meet or yeah, we cannot because of these COVID complications. From yeah. So, please. sir, to start with, first I would like to know what are the major post-COVID complications observed as per your experience after recovery of COVID-19 patients. Actually, I experienced these COVID complications since last year also. So when there was first wave, then second wave came. So there is some slight difference between the complications of first and second wave, but the intensity is more. So in first wave, we were facing like long-lasting loss of taste and smell, and this loss of post-COVID, this hyperbilirubinemia, dysfunctional liver functional test, and इसके अलावा जो थे वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी बड़ों में लोगों में, then extreme prostration along with the sign of dyspnea. But in second wave, we observed the sign of dyspnea increased at greater intensity and greater degree. So in the second wave, we observed the dyspnea is more prominent, respiration difficulty is more prominent, along with fear of death, psychological impact also. Insomnia is very prominent in the second wave, and due to the longer effect of steroids, we have seen the cases of black fungus, yellow fungus, and all these, because they can do the immunocompromise with our body. So all these things we have seen in the post-COVID stage. And recently we have seen in the news also that the patients who are discharged from hospitals are again admitted for the cytokinin storm, even after up to 3 months also. So this is another complication which is very recent in the COVID. Okay. And so जैसा देखा गया है कि इस बार particularly second wave जब आई थी तो काफी different levels पे destruction, like last year था तो there were deaths were very less and we could control it in a very short time. But इस बार जो आया उस पे people have actually faced physical, mental, financial and emotional disturbances, and they have become more vulnerable. So उसके लिए आपके experience के हिसाब से क्या suggestion है और लोगों को कैसे उससे कोप अप करना चाहिए, because this problem is creeping a lot now. So मेरा एक्सपीरियंस इसमें ये रहा कि साइकोलॉजिकली तो इम्पैक्ट बहुत किया है. पिछली बार भी क्या था, लॉकडाउन था, लोगों को बाहर जाने को नहीं मिल रहा था, लेकिन पिछली बार क्या था, क्योंकि आप जैसे आपने बोला कि डेथ्स कम थी, तो उसके तुलना में इस बार वी लॉस्ट आवर नियर्स एंड डियर्स वंस, तो उसकी वजह से भी
बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको 3 to 4 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक तो वो जो पेशेंट खुद है, कोविड पेशेंट खुद है, कोविड पेशेंट है तो परेशान होकर के बार बार अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहा है, इवन वो कोमॉर्बिडिटी का शिकार नहीं है तो भी। उसके अलावा उसके अंदर फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ लूजिंग समवन या एंजाइटी डेवलप हो जा रही है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन आ रही है, हु आर द अटेंडेंट ऑफ द कोविड पेशेंट्स, जो उनको देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको ना हो जाए या उनको हो गया, वो उसको सफर करते देख रहे हैं तो उनको खुद बहुत एंजाइटी फील हो रही है, जिसकी वजह से उनको इंसोम्निया हो जा रहा है, लॉस ऑफ स्लीप है। इसके अलावा जो थर्ड जो पर्सन है वो है हमारा स्टूडेंट और जो कैरियर ओरिएंटेड लोग हैं, उनके अंदर बड़ी एंजाइटी है कि एग्जाम का क्या होगा, हमारे कैरियर का क्या होगा। और जो एक कैटेगरी और है वो है जो दोज पेशेंट्स हु आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल, though they are normal, if not normal, but at the certain level, if their SpO2 is down up to the degree of 90 or 88, so they are seeing the patients nearby 85 SpO2 level or 80 SpO2 level, they become anxious, and by anxiety they lose their hope, they start to lose their hope of life. So ये जो चीजें है ना, ये काफी प्रोमिनेंटली देखी गई, और कई लोगों ने तो ये बोला कि डॉक्टर साहब मुझे तो आप सिर्फ जो है ना वो ऐसी दवाई दे दो कि जिससे नींद आ जाए, मैं जो डर है वो बैठा वो खत्म हो जाए। तो मैंने ऐसा देखा कि इस केस में मैंने कुछ जगहों पे जिनका बीपी थोड़ा हाई हो गया एंजाइटी की वजह से, उनको मैंने एकोनाइट 200 की डोजेज, रिपीटेड डोजेज दी, तो उससे काफी उनको आराम मिला। साइड बाय साइड आई हैव गिवन कालीफ्रास आल्सो HS एट बेड टाइम, तो उससे उनको काफी रिलीफ मिला। इसके अलावा जैसे ग्रेस्पिंग फॉर ब्रेथ के लिए वो लोग, कई बार ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकली डिस्निया हो रहा है और बीपी भी हाई है, तो एमाइल नाइट्रोसम हमारे यहाँ होम्योपैथिक में मेडिसिन है बहुत अच्छी, तो उसका काफी अच्छा रोल रहा है इसमें। तो इस तरीके से हमने बहुत कुछ मेडिसिन दे करके सिम्टोमेटोलॉजिकली पेशेंट को आराम पहुंचाया है। बट फियर तो डेफिनेटली जो है बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट रहा ही। सर एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है लाइक SpO2 के बारे में। सो अब SpO2 क्या होता है कि हम फ्रीक्वेंटली चेक करते रहते हैं, थोड़ा भी लगता है बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल फियर और व्हाटएवर दे आर गोइंग थ्रू, तो उसके बारे में आपका क्या है कि आई मीन हाउ फ्रीक्वेंटली वी शुड चेक SpO2 सो दैट मतलब हमें अलार्म पता लग जाए कि इस अलार्म के बाद हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए या घर में हो सकता है, सो हाउ फ्रीक्वेंटली वी शुड चेक SpO2? In my point of view, body manifests itself, you see your symptoms. So first of all, if you are asymptomatic, so no need to worry. Yes, we have to be conscious. There are some terms which is going on in WhatsApp and the medical world also, which is known as happy hypoxia kind of. But happy hypoxia सबके साथ नहीं हो जाएगा. So you have to first of all judge your body yourself. Judge your body that what is your immunity level, how is you are healthy, what are you doing. If you are suffering from any diabetes or any hypertension or anything else, then you can say that yes, we have to check it regularly, because we are suffering from comorbidity. Even if I am not a COVID patient, if I am attendant, I have to check once in a day. If I am a COVID patient and my SpO2 is doing normal, then I have to check twice, morning and evening only, with temperature. If I am feeling kind of dyspnea, if I am feeling restlessness or respiration difficulty, then I have to check 4 hourly. And if it increases, means the respiration rate increases or sort of breathing problem increases, then we have to check it regularly and consult a doctor also, not only check this. So side by side we have to monitor this on the depend on the person to person. So ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही पैरामीटर है, आप जो है जितना ज्यादा चेक करोगे जबरदस्ती उतना ज्यादा, क्योंकि कभी 93 आएगा कभी 92 आएगा, परेशान हो जाओगे, बोलोगे मुझे हॉस्पिटलाइज होना है या मुझे जाना है, उसके करने की जरूरत नहीं है। और अब तो बहुत सारी गाइडलाइंस ऐसी आ गई हैं कि आप प्रोन पोजीशन में होकर के अच्छे से आप ले सकते हो सांस, तो उसमें आप उसमें सुधार कर सकते हो। जहां तक डॉक्टर साहब आपने एक लाइफस्टाइल वाली बात पूछी थी लास्ट वाले क्वेश्चन में, उसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि लाइफस्टाइल जो चेंजेस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप सपोज करिए कि आज के डेट में हम लोगों ने जो केसेस देखे उसमें ज्यादातर की जो डेथ थी वो कोमॉर्बिडिटी से हुई है। इफ यू विल ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट टू बिकम डायबिटिक और हाइपरटेंसिव आवरसेल्फ, देन इट वुड बी वेरी बेटर एंड वी आर वेरी सेफ। तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज होने के बाद, हाइपरटेंशन होने के बाद हम जो है सजग हों, हमें उसके पहले ही इस चीज को होने से बचाना होगा। उसके लिए जो हम लोगों ने बचपन में क्राइम भी सुनी थी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज,
वो सारी चीजें, टाइम से सोना, ज्यादा देर रात तक नहीं जगे रहना, हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट था, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज घर पे भी किया सकती हैं। आप डांस कर लो अगर डांस करना चाहते हो, आप कुछ और कर लो, किसी को देख के मोटिवेट हो लो, थोड़ा टीवी देख लो, कॉमेडी मूवीज देख लो। इस तरीके से अपने को थोड़ा सा एंगेज रखोगे तो मेरे को लगता है कि आप कोमॉर्बिडिटी के अगर शिकार नहीं होते हो तो बहुत हद तक आप सेफ हो। Thank you for this valuable question. So next question is like, uh, I mean, it will for general public and our practitioners also, or students also. Like, आप कौन सी medicines है जो practitioner generally use कर सकते हैं? Of course, I understand कि बिना prescription के तो मुश्किल होता है. जी We go on totality, but just for therapeutic point of view, so that we can get some indications. So I have आपके categorized, okay. I have categorized this in two types. One is from mental purpose, and second is physical. So mental, obviously, we have seen that fear is the most important symptom, fear and anxiety. So we have observed some medicines which are very good in action in cases of fear. Like if a person is restless from fear or being alone, arsenic album is a very good medicine for this. Another medicine, if hearing some bad news and patient को डर लगने लग रहा है तो कैलकेरिया फॉस और लाइसिन फर्स्ट ग्रेड में दी हुई है कंप्लीट रेपर्टरी में, और अच्छा एक्शन करती है। इसके अलावा है कि फियर डेंजर ऑफ बीइंग इम्पेंडिंग और गोइंग टू स्लीप, सोने जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि सोने के बाद कहीं मुझे मेरी डेथ ना हो जाए या कहीं कुछ वैसा कोई डिजीज ना हो जाए, तो कॉफिया सिंगल मेडिसिन है, और कॉफिया 1 ml में 1 डोज अगर लेग पेशेंट जाए बेड पे तो वो आराम से सो सकते हैं। इसके अलावा फियर ऑफ सडन डेथ बहुत कॉमन है, तो आर्निका, आर्सेनिक और सेंचुरिस एक मेडिसिन है, उसका बहुत अच्छा रोल है। उसके अलावा है फियर दैट ही विल डाई इमीडिएटली व्हेन ही विल गो टू स्लीप, तो लेकेसिस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है इसके लिए। इसके अलावा है हम जहाँ हम आइसोलेशन में हैं उस रूम में घुसने में, एंटर करने में डर लग रहा है, तो ऑन एंटरिंग रूम वैलेरियाना इज ए सिंगल मेडिसिन। So we have lots of medicines, lots of variety of medicines of losing self control, नहीं बर्दाश्त हो रहा है, एक जगह से उधर उधर रेस्टलेस कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अर्जेंटम नाइट्रिकम इज a very good medicine. When thinking of disagreeable things, जो हमारे साथ हो गया, जो हमारे प्यारे लोग चले गए, जो नियर एंड डियर वंस थे नहीं रहे, उनके बारे में बार बार ख्याल जा रहा है हमारा, तो फॉस्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन इसके लिए। इसके अलावा थिंकिंग ऑफ सैड थिंग्स में रस्टॉक्स का भी अच्छा एक्शन है। और एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है कि फियर की वजह से भूख नहीं लग रही है, anorexia from fever, then ignitia is very good medicine for this. So I just pick some medicines from the literature and I have given to the patient also. It acted very well. So these doctors and students can use it according to totality of symptoms as well as you said, symptom similarity. They can use it well. Thank you so much, sir, for very, very valuable information and taking time out for giving us this information. So I would request to audience also, अगर कोई का question होता है तो they can DM our inbox and we will try to answer. I mean, if at all we get time, we will try to give that And answer. the second category is the physical. Shall I continue? Yes, sir. So Yes, sir, sure. जो ये तो मेंटल था, उसके अलावा जो फिजिकल कैटेगरी में मोस्टली जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, जैसे कि अभी हम लोगों को फैटिग हो रहा है, एग्जॉशन हो रहा है, या पेन हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, इनके लिए भी जैसे है कि आप अगर एग्जॉशन है, फैटिग है, वीकनेस है, तो आप जेल्सीमियम दे सकते हो, यूपिटोरियम पर्फ दे सकते हो। इसके अलावा अविना सटाइवा को दूध में डाल के दे सकते हो 10 ड्रॉप्स। इसके अलावा आप जो है क्यूप्रम मेट दे सकते हो, एसिड फॉस दे सकते हो। ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। बॉडी एक में भी यूपिटोरियम पर्फ, और एक और मेडिसिन है सोलनम लाइकोपर्सिकम, ये बॉडी एक में बहुत अच्छा काम करती है। बॉडी एक आफ्टर इन्फ्लुएंजा, एक क्लार्क में भी इसमें इसका रेफरेंस दिया हुआ है। एक्सट्रीम वीकनेस है, चला नहीं जा रहा है, तो कार्बोवेज 1 ml में, या आप कैम्फर 1 ml में भी दे सकते हो, है ना। आर्सेनिक एल्बम मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से रेस्टलेस है तो आप दे सकते हो। फीवर के केस में अगर फीवर बार बार, हमने ये सुना कि फीवर फिर लौट के आ जा रहा है, तो पायरोजेनम है, ब्रानिया है, वो आप दे सकते हो। हेयर फॉल के केसेस बहुत आ रहे हैं, तो इसमें एक बहुत अच्छी मेडिसिन है थैलियम मैट। थैलियम मैट 30 में आप चला दो 15 दिन के लिए, थ्राइस अ डे। लाइकोपोडियम हाई पोटेंसी में दे सकते हैं, फॉस्फोरस वाइजेबडन दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टोटलिटी ऑफ द पेशेंट। इसके अलावा जैसे कि कहा हमने कि बैड इफेक्ट ऑफ द लॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स, तो उसमें आप कॉर्टिसोन 30 आती है मेडिसिन, कॉर्टिसोन 30 दे सकते हो, नक्सोमिका दे सकते हो, सल्फर दे सकते हो। इसके अलावा
अगर ब्रेथलेसनेस हो रही है पेशेंट को ज्यादा, तो recently we have seen in the social media also the vanadium and this Aspido tinctures were there. So vanadium is actually it is for the increase the total iron binding capacity, but लोगों ने उसको SpO2 से जोड़ दिया, लेकिन काम करती है, but Aspidosperma is more working on the post COVID thrombosis और thrombosis after influenza, उस पर बहुत अच्छा काम करती है Aspidosperma। इसके अलावा जो है कालीकाब है, स्पोंजिया है, सेनेगा है ना, एंटीम टार्ट है, आर्सेनिक एल्बम ऑब्वियसली है, ये सारी मेडिसिन हैं जिसको कि हम लोग दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक कंसर्न है म्यूकरमाइकोसिस को लेकर के, ब्लैक फंगस को लेकर के, जो कि आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में भी है। तो सारी प्रिकॉशंस को लेते हुए पेशेंट अगर एडमिट है तो उसको हम नेट्रम सल्फ और रस्टॉक्स भी दें तो भी काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है म्यूकरमाइकोसिस में। और म्यूकरमाइकोसिस का एक रूब्रिक भी आपको मिल जाता है कंप्लीट रिपर्टरी में, म्यूकरमाइकोसिस करके मिल जाएगा, फंगोइड करके आपको उसमें रूब्रिक में मिल जाएगा। उसमें भी मेडिसिन जैसे हैं आर्सेनिक, कोनियम, मर्क और फॉस्फोरस, तो वो भी आप उसको सिम्टम टोटलिटी के आधार पे उसको आप दे सकते हैं। तो ये लब्बो-लुआब एक छोटा सा मैंने बता दिया ताकि थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए लोगों को इसके बारे में। काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन था सर। अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑडियंसेस कि कुछ भी क्वेश्चन हो तो उस पे they can message us. We will respond. Yes. We will try to respond on that. Okay. And thank you so much, sir. Anything else you want to add in this? I mean, for our you want to give any tip for the students and practitioners who are who are fighting for the patients in this tough time? Just I will advise them that you only follow your protocol what we have studied in our medical science. So we have to follow our protocol. Don't panic, क्योंकि कभी-कभी डॉक्टर भी पैनिक कर जाते हैं। तो आपको you have to believe on your clinical knowledge. आपको ऐसा नहीं है कि जो है आपको कुछ नहीं आता या आप बहुत जल्दी परेशान हो जाओ। आप पैरामीटर्स को जज करो, आपको एग्जामिनेशन सिखाया गया है, फिजिकल एग्जामिनेशन सिखाया गया है, सब चीज सिखाई गई है। आप उसके अकॉर्डिंग विजिलेंट रहो, ना तो आप बहुत ज्यादा लापरवाह हो, ना बहुत ज्यादा आप ओवर कॉन्शियस हो पेशेंट को लेके, क्योंकि आप अगर ओवर कॉन्शियस हो जाओगे तो पेशेंट वैसे भी घबरा जाएगा। तो आई थिंक यू हैव टू फॉलो योर बेसिक्स। आप बहुत जैसे आप आराम से केस लेकर के पेशेंट की हालत को देखते हुए, सारे ब्लड पैरामीटर्स को देखते हुए, जैसे आजकल बहुत सारे ब्लड पैरामीटर्स लोग करवाते हैं, डी डाइमर है या आपका सीरम फेरेटिन है, सीआरपी है, इनको कब कब कराना चाहिए इसका आप थोड़ा ध्यान रखो। बार बार मत करवाओ, आप जो चीज जरूरी है उसको करवाओ, है ना। आप हर 3 दिन पे 4 दिन पे आप करवाते रहो, तो जो टेस्ट जरूरी है आपको वही करवाने हैं, हर टेस्ट नहीं करवाना है हर 3-4 दिन पे। सीबीसी का हाँ जरूर ध्यान रखें, उसमें ल्यूकोपेनिया है कि नहीं है, लिम्फोसाइट्स काउंट कितनी आ रही है, ये थोड़ा सा, क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा कि बॉडी की एक्चुअल इम्यूनिटी क्या कह रही है। HRCT भी आप कराओगे तो 5वें से 7वें दिन के बीच में, तीसरे दिन ही लोग भेज देते हैं कराने के लिए। तो वो भी इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमको कब कौन सा क्लिनिकल टेस्ट कराना है और उसके अकॉर्डिंग कौन सी मेडिसिन देनी है। तो ये कहूंगा कि मैं आप बाकी पेशेंट्स को बोलूंगा कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बहुत अच्छा एक्शन करती है, आप इस पे बिलीव करिए और अच्छे डॉक्टर से और अपने पास के नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करके ही कोई दवाई लें। इस ब्रॉडकास्ट को सुन करके अपने मन से दवाई मत लीजिएगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। Thank you so much, sir. And now we will look forward to have such valuable information in future also from you. Yes, and of course. We will be contacting you for that. Okay. Yes. Thank you. Thanks. Okay. I enjoyed also. I very much. Okay. It's our pleasure. Thank you.